Now let us separate two mixtures, two miscible liquids. We can do that by distillation. This is the distillation apparatus. Okay, this is the distillation flask. Thermometer is attached to it so that we come to the boiling point of that mixture. Okay, what we'll do, we'll take acetone and water, okay, in this flask and we'll heat it. Okay, now the boiling point of acetone is 56 degrees centigrade. Okay, boiling point of water is 100 degrees. Okay, so there is a difference between the boiling points. Okay, if the difference between the boiling points is less than 25 Kelvin, then fractional distillation is used. Now in this case, the boiling point, the difference in boiling point is more. Now water is 100 degrees and acetone is 56 degrees. Okay, so for this you will use just a distillation flask. You will not require fractional distillation. Okay, now what will happen first, the liquid with the least boiling point will start evaporating first. Okay, so acetone will start boiling and it will start evaporating. Okay, it will pass through this tube, okay, in which water is continuously running so that the vapor gets cooled. Okay, here cold water is poured in this arrangement and after the vapor is cooled, we get clear acetone in this collection tank. Now once all the acetone has completed collecting in this collection tank, okay, the water will start boiling. As its boiling point is 100 degrees, okay, all the acetone will get collected after 56 degrees centigrade. Okay, now what will happen, now water will start boiling, okay, and all the vapors will be collected and we can replace this collection tank. We can put one empty tank and collect water in it. Okay, so in this way we can separate acetone and water. Okay, now since the difference between the boiling points is more, you will not require any other separate attachment. Okay, this example you can see in the beer factory where beer is made. Okay, now this is a fractionating column. Okay, the apparatus which we had seen earlier for distillation, okay, it is the same, only this extra fractionating column is added. And why this is added and why this is used? This is used when the boiling points, when the difference in boiling points, okay, of the miscible liquid is less than 25 Kelvin. Okay, when there is a minor difference in the boiling points, this fractionating column is used. What is the use of this? I will explain you. Okay, now suppose you take acetone and ethanol as a miscible liquid, and if you want to separate them, what you will do, you will take a fractional distillation. You will use fractional distillation method. Okay, now since the difference in boiling points between them is very less. Acetone, you know, the boiling point is 56, okay, and ethanol is 78 degrees centigrade. Okay, so the difference is very less. It is around 22 degrees centigrade. Okay, so what is the use of fractionating column? The boiling point which is less, that is acetone, will start boiling first. The vapors will pass through this fractionating column. Okay, once 56 degree is reached, okay, 56 डिग्री एक बार पहुंच गया टेम्परेचर, तो क्या होगा, पहले एसीटोन बॉयल हो गए, उसका वेपर्स कलेक्ट होना चालू हो जाएगा. ओके, ये कंडेंसिंग वाटर कंडेंसर है. मतलब क्या होता है कि जैसे वेपर्स यहाँ जाते हैं तो वेपर्स को ठंडा करेंगे तब वो अपने को प्योर फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा. तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ से ठंडा पानी का एक इनलेट होता है, वो पास करना होता है. ठीक है, तो पहले अपने को यहाँ क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अभी सपोज 60 डिग्री 65 डिग्रीज हो गया. ठीक है, और तब तक ये क्या है, ये अभी तक
ख़त्म नहीं हुआ रहेगा एसीटोन अभी थोड़ा आना बाकी होगा और उतने में ही इसका बॉइलिंग पॉइंट चालू हो जाता है, मतलब इथेनॉल का 78 डिग्रीज। एक बार 65 डिग्रीज हो गया तो क्या होगा कि ये इथेनॉल ट्राई करेगा, यहाँ से पुश करने की कोशिश करेगा। ओके, ये फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम में से पुश करने की कोशिश करेगा तो नहीं जो हो पाएगा। जब उसका एक 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा तब क्या है, वो वेपर्स में इतनी ताकत मिल जाएगी कि इट कैन पास थ्रू दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड देन इट विल कलेक्ट इन दिस कंटेनर। ओके, so now you understood the difference why we are using fractionating column. The vapors when reach the required temperature will have enough energy to pass through this. Otherwise अभी जब 78 डिग्रीज इथेनॉल का है बॉइलिंग पॉइंट, ओके, उसके पहले 65 डिग्रीज हुआ तो क्या गर्म होगा लेकिन वो पास नहीं हो पाएगा, उतनी ताकत नहीं है उसमें कि यहाँ से क्रॉस हो सके। ठीक है, इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? ओके, यू नो दैट एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, it contains various gases like oxygen, nitrogen, argon, all various kinds of gases are there. Okay, so now how will you separate the gases from that air? You will use the fractional distillation method. Okay, now you know that the boiling point of oxygen is minus 183 degrees centigrade, argon is minus 186 degrees, nitrogen is minus 196 degrees centigrade. Okay, so what method you will use? You will use this separation of components of air. Okay, I'll explain you the procedure how it is. Okay, here from this this is a filter in which air is pumped into this container where pressure is applied. Okay, यहाँ से हवा पास होती है और यहाँ से प्रेशर अप्लाई होता है। when pressure is applied, what happens to the gases we have learned earlier? Its temperature will reduce. Okay, start reducing. Okay, this hot air when it comes into this chamber, what will happen in this chamber? This is a cooling chamber. What is cooling chamber? Water is allowed to enter through this into the chamber. Okay, so what happens with that? अगर ठंडा पानी जाएगा, गैस गर्म होगा तो वो ठंडा हो जाएगा। ओके, ये प्रेशर इज अप्लाइड, ये टेम्परेचर इज रिड्यूस। सो व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट लिक्विफाइंग, गैसेस विल स्टार्ट लिक्विफाइंग। आफ्टर दिस द गैसेस आर पास्ड आउट ऑफ दिस चेम्बर एंड it comes in this separator chamber. Okay, where now you know that solid carbon dioxide is ड्राई आइस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। तो क्या होगा? वो सॉलिड बाहर आ जाएगा, मतलब एक अपने को गैस बाहर मिल गया, इट कम्स आउट एज ड्राई आइस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। बाकी सब जो बचे गैसेस क्या होगा? यहाँ से हम लोग उसको एक्सपेंशन जेट में चेम्बर है वहाँ से हम लोग उसको जोर से पंप करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? अभी लाइट गैसेस कौन से है? नाइट्रोजन है और आर्गन है। जोर से अगर हम लोग स्प्रे जैसा फोर्स से करेंगे, स्प्रे करेंगे तो क्या होगा? आर्गन और नाइट्रोजन लाइट है तो वो ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी बचा क्या? ऑक्सीजन बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? फिर वो लास्ट चेम्बर में आ जाएगा, इट विल कम इन लिक्विड, सो इट इज कॉल्ड एज लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ देयर इज वन मोर मेथड ऑफ सेपरेटिंग द इम्प्योर सब्सटेंसेस। Now if you take copper sulfate, okay, if you want to separate copper sulfate, that is if you want crystals of copper sulfate to be separated, okay, from an impure sample, what will you do? You will use method of crystallization. What is crystallization? I will explain you. Okay, take some amount of 5 grams of sample, impure sample of copper sulfate in a china dish. Okay, and what we will do, we will put some water so that it is dissolved. We will use minimum amount of water and we will dissolve it in water, and then what we will do, we will filter that out. We will use filter paper. Okay, the impurities will remain on the filter paper. Okay, now what we will do, we will evaporate that remaining solution. Okay, after evaporation
what we will do, we will cover the solution with filter paper and leave it undisturbed at room temperature. मतलब उसको हम लोग ठंडा होने देंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ठंडा होने देंगे, उसको अचानक से ठंडा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे पूरी रात भर। तो वो ठीक ठंडा हो जाने के बाद में क्या मिलेगा अपने को, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। नाउ we'll take one more example of crystallization. You know, we have seen salt, how we get salt from that sea water, okay. What we do, we take salt water, okay, from the sea, and we will allow it to dry in the sun, okay. So after few days of drying, what will we receive? We'll receive crystals of salt, okay. So crystallization is just like evaporation, okay, but it is better than evaporation. Why? Because some solids are there which decompose on heating. Like for example, if you take sugar, what will happen, it may get charged on heating to dryness, okay, and some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration, because the particles will be so small that even that filter paper can't be able to retain it. It will allow the impurities to pass along from the filter paper, okay. Now in cities, the drinking water which we get, okay, it is also purified, that is also filtered. How it is done, we'll study in the next page. Water is taken out from the reservoir from these pipes, and it is passed through the sedimentation tank. What is sedimentation tank? Where with the help of gravity, heavy particles settle to the bottom of the tank. Like लकड़ी का टुकड़ा होता है पानी में आता है, फिर मट्टी का टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो सब बैठ जाते हैं इधर सेडिमेंटेशन टैंक में। एंड फ्रॉम द टॉप द वाटर इज taken into another tank which is called loading tank, okay. In this suspended impurities आते हैं, suspended मतलब पानी के अंदर तैर रहे वो impurities होते हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं और कोई एलम डालते हैं। वो सब डालने के बाद क्या होता है, सस्पेंडेड जो मैटर आता है वो इट विल सेटल टू द बॉटम ऑफ द टैंक और प्योर वाटर ऊपर से निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इट इज पास टू द फिल्ट्रेशन टैंक। इन फिल्ट्रेशन टैंक व्हाट इज देयर, द बॉटम मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ कोर्स ग्रेवल, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, थोड़े छोटे पत्थर होते हैं, और उसके ऊपर क्या रखते हो, फाइन सैंड, एकदम रेती होती है, ओके। और पानी जब इसमें से सब सारे में से पसार होता है तब अपने को क्लियर वाटर मिलता है, ठीक है। और ये क्लोरिनेशन टैंक है, इसमें बैक्टीरिया मार देते हैं केमिकल्स डालने के बाद में, और उसके बाद अपने घर पे वो सप्लाई होते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया विच यू कैन इमेजिन अबाउट द filtration of water which we get at our homes. Now let's learn about the physical and chemical changes, okay. To understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between physical and chemical change, okay. In previous chapter we have learned about a few physical properties of matter. The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, etc. are the physical properties. Physical मतलब क्या है, हम लोग उसको हाथ लगा के फील कर सकते हैं, उसको फिजिकल बोलते हैं। जैसे डेंसिटी, उसका वजन कितना हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने डिग्रीज पे वो मेल्ट होके बर्फ़ बन जाएगा, पानी बन जाएगा, अगर आइस है तो पानी बन जाएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्रीज पे वो वेपर बन जाएगा, ओके। रिजिडिटी, कितना रिजिड है वो, और फ्लूइडिटी, ये सब हमने टर्म्स सुने थे, ठीक है। वाटर इज फ्लूइड, कितना फ्लो हो सकता है वो, ठीक है। द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज द फिजिकल चेंज, मतलब क्या होता है कि अभी जैसे सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, ये सब इंटरकन्वर्जन है स्टेट्स के। वो कैसे होता है, इट इज़ जस्ट अ फिजिकल चेंज, मतलब कोई केमिकल ऐड नहीं करना पड़ता अपने को उसको चेंज करने के लिए स्टेट, ठीक है। तो ये सब को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस, मतलब वो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। Although ice, water and vapor are
ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सारों के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि आइस का कैसे सॉलिड है वो, ओके, इट हैज़ वेरी टाइट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये सारे हमने पढ़े थे, वो सब प्रॉपर्टीज़ अलग है, लेकिन कैसे केमिकली सेम है वो। अगर आइस को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर H2O है, वाटर के अंदर भी H2O है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। किसी भी स्टेट में ले लो, तरह के अगर हम लोग लिक्विड में लेते हैं तो भी वही होगा, वेपर में लेते हैं तो भी वही होगा। वेपर को कूल करने के बाद हमको वही सब मिलेगा। अगर हम लोग पानी और तेल लेंगे, ठीक है, दोनों का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, मतलब दोनों को अगर वाश करेंगे तो तेल का थोड़ा वाश आएगा, पानी का नहीं आएगा। और जो तेल है वो तुरंत आग पकड़ लेगा, इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेबिलिटी। वेरएज पानी क्या होता है, इट एक्सटिंग्विशेस फायर, वो आग बुझा देता है। तो दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सब अलग है, ठीक है। A chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substances, ठीक है। केमिकल डालने से या केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब वो अपना प्रॉपर्टीज चेंज होता है। A chemical change is also called a chemical reaction, ठीक है। What are the types of pure substances? Pure substances can be classified as elements and compounds, okay. Robert Boyle was the first scientist to use the term element. He has introduced Robert Boyle in year 1661, okay, and French chemist was the first to establish an experimental useful definition of an element. He carried out some experiments and proved and defined the element. What is an element? The definition of element: it is a pure substance which is made up of one kind of atoms or elements, okay. For example, what you can take example of gold, okay. Gold bar, you know, okay. Gold is made up of gold atoms. For example, you can take one more, oxygen atoms, okay. It's a gas. Oxygen atoms consist of oxygen. Any oxygen molecule, if you take it, consists of oxygen atoms, okay. Now elements can be divided into metals, non-metals and metalloids, okay. What are metals? Metals which have a shiny luster, they have silver gray or golden yellow color. They conduct heat and electricity, मतलब वो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। They are good conductors of electricity, okay. Luster मतलब शाइन करता है, वो चमकता है वो, ठीक है। दे आर डक्टाइल, मतलब क्या है कि वो उसको अगर वायर बनाना है उससे तो बना सकते हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। दे आर मैलिएबल, मैलिएबल मतलब उसकी थिन शीट बन सकती है, ठीक है। दे आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, मतलब वो आवाज़ कैसा आएगा, जैसे कि ये कोई घंटा हो गया, उसको बजाने से जैसा आवाज़ आता है रिंगिंग साउंड, वो होता है। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ओके, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ metals. And mercury is only the metal which is available in liquid form at room temperature. All other metals are solid, okay. There are 118 known elements, ठीक है। उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर में, ओके। और मर्क्यूरी और ब्रोमीन दो खाली ऐसे है मेटल्स की जो लिक्विड फॉर्म में है अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, ओके। बाकी सब सॉलिड है। नाउ non-metals usually show some or all of the following properties. They display a variety of colors, ठीक है, अलग अलग कलर के होते हैं नॉन मेटल्स। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो लोग में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दे आर नॉन लस्टरस, मतलब कोई शाइन नहीं है उसमें और कोई आवाज़ भी नहीं आता, अगर उसको ऐसे बजा के देखते तो कोई रिंगिंग साउंड नहीं आता। और दे आर नॉट मैलिएबल, मैलिएबल मतलब हमने देखा उसकी शीट्स नहीं बना सकते, ठीक है। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन. Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals.
ओके। कोई कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं कि दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, मतलब वो एक मैलिएबल होगा और उसका शाइन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे मतलब दोनों के मिक्सचर हो गए, तो वो उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ओके, मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। देयर आर 118 known elements. Okay, this is more now, 118, and research is going on continuously to search more elements. Okay, and majority of the elements are solid. Okay, only 11 elements are in gaseous state at room temperature. Okay, 2 elements मतलब क्या है कि खाली 11 एलिमेंट ऐसे हैं कि वो गैस फॉर्म में अवेलेबल है। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, उसका एग्जांपल मैंने बताया था पहले, ठीक है। एलिमेंट्स गैलियम, सीसीएम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से अगर थोड़ा भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये 2 एलिमेंट्स है वो लिक्विड बन जाएंगे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट कंपाउंड। व्हाट इज अ कंपाउंड? अ प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली in a definite ratio such that it can be broken down into elements only by chemical means is called a compound। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब कंपाउंड किसी भी ऐसे कंपाउंड क्या सब्सटेंस है कि किसी भी 2 चीज़ से बना है वो, ठीक है, और वो भी कैसे कि वो प्रॉपर एक डेफिनेट रेशियो है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, तो उसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम में 2 हाइड्रोजन एटम्स है। अगर ऑक्सीजन एटम्स 2 हो जाते हैं और हाइड्रोजन एटम 1 होते हैं तो वाटर नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज कंबाइंड केमिकली एंड इन अ फिक्स रेशियो, ठीक है। और अगर उसको पानी को हमको तोड़ना है तो क्या करेंगे, इट विल रिक्वायर सम केमिकल मीन्स। ओके, now you know water is made up of hydrogen and oxygen atoms. Okay, हाइड्रोजन एटम इज वेरी कंबस्टिबल, मतलब वो आग जल्दी पकड़ लेते हैं। एंड व्हाट डज ऑक्सीजन डू, इट सपोर्ट्स कंबशन, मतलब वो बर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है। और जो वाटर बनते हैं वो दोनों का टोटल ऑपोजिट है, वो क्या करता है, आग बुझा देता है। मतलब दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, ठीक है। मतलब जो बनता है इट इज़ टोटली डिफरेंट। ओके, now let's do one activity. We will divide the class into 2 groups, okay, and we'll give 5 grams of iron fillings and 3 grams of sulfur powder in a china dish to both the groups, ठीक है। एक ग्रुप है उसको 5 ग्राम लोखंड की जो बुक्का होता है वो देंगे और एक को 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर हम लोग जो आयरन का जो पाउडर है और सल्फर दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करके उसको क्रश कर देंगे और उसको गर्म करेंगे जब तक कि वो लाल नहीं होता। तभी लोखंड आपको मालूम है कि अगर जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, लाल हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद उसको गैस पे से निकाल के उसको ठंडा होने देंगे, ठीक है। और बाद में उसका अभी मैग्नेटिज्म आपको पता है कि लोखंड में होता है, ठीक है। तो वो दोनों को अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट अगर उसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, जो लोखंड का बुक्का है वो मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग उसको देखेंगे टेक्सचर उसका कैसा होगा, अलग होगा। मतलब जो आयरन वाला होगा वो पाउडर फॉर्म में है, मतलब कैसे थोड़ा धार नुकीला होगा, और सल्फर पाउडर कैसे है, स्मूथ होगा। ओके, दैट इज़ अ टेक्सचर, वो टेक्सचर बोला जाता है। और दोनों का कलर भी है ना अलग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कार्बन डाइसल्फाइड जो सोल्यूशन है टू 1 पार्ट ऑफ द मटीरियल ऑब्टेन, मतलब वो जो अपने को जो दोनों का मिक्सचर मिला गर्म करने का, तो वो उसको क्या करेंगे, 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे और फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करेंगे उसका, ठीक है। जो दूसरा भाग होगा दोनों का मिक्सचर का, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है। हमने जो एक्टिविटी की थी, ठीक है, हमने क्या किया था, आयरन फिलिंग्स लिया था, सल्फर पाउडर दोनों को मिक्स किया, गर्म किया और उसको मैग्नेट से सेपरेट किया। तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल सेपरेशन। वी यूज़ मैग्नेट फॉर फिजिकली सेपरेटिंग देम, ठीक है। और दूसरे ग्रुप ने क्या किया था, हम लोग ने उसमें एक में कार्बन डाइसल्फाइड डाला, दूसरे में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला।
दोनों का सेम कंपोजिशन था, ठीक है, लेकिन हम लोग ने केमिकल्स अलग डाले थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमको अलग अलग गैस मिले, एक में हमको मिला हाइड्रोजन गैस, दूसरे में मिला हमको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट. वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट. मतलब जो कंपाउंड मिक्स हुआ, जैसे कि आयरन फिलिंग्स और हम लोग ने सल्फर पाउडर मिक्स किया, तो दोनों का कंपोजिशन सेम है, ठीक है, वो मिक्स करने के बाद भी। लेकिन जब हम लोग केमिकली उसको चेंज करते हैं, जैसे कि एक में डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है, दोनों का कंपोजिशन चेंज होता है. नाउ वी कैन समराइज दिस एज मैटर इज अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ओके, मैटर इज प्योर सब्सटेंस, वन इज प्योर एंड द अदर इज मिक्सचर्स. ओके, प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है. एलिमेंट्स आर सच दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. उसको हम लोग और छोटे भाग में नहीं डिवाइड कर सकते, जैसे कि कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया. ऑक्सीजन एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा. कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट. ओके, जो नमक वगैरह है, शुगर है, उसको हम लोग वी कैन ब्रेक देम डाउन. ये जो वाटर है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि उसको कैसे केमिकल रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. वी नो दैट वाटर कैन बी decomposed by electrochemical means. Okay, it will decompose into hydrogen and oxygen. Okay, mixture is classified as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, what is homogeneous mixture? It is as the same composition throughout and there is no visible boundary of separation. Okay, मतलब वो ऐसे मिक्स होता है कि ऐसा लगता है कि अपने को एक ही चीज़ है, लेकिन वो होगा अलग अलग, ठीक है, और वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होगा, और उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इट विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. मतलब जो लाइट का पाथ है, इट विल नॉट बी विजिबल. ओके, द ऑपोजिट ऑफ दैट इज हेट्रोजीनियस. इट डजंट हैव एनी इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, एंड इट कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट बिकॉज द पार्टिकल साइज इज मोर. So with this you will summarize matter. It can be classified as pure substance and mixtures. Okay. Now what have we learned so far? This is the summary of that what we have learned. A mixture contains more than one substance, element or compound mixed in any proportion. Okay. Mixture is what? अपने को उसका नाम से ही पता चलता है. मिक्सचर वो दो या तीन से चीज़ से बना हुआ है. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेज यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स. ठीक है, मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स हमने देखे थे. ठीक है, कौन कौन से टेक्निक्स देखे थे, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ये सब चीज़ से सेपरेट किए जा सकते हैं. ठीक है. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The major component of a solution is called the solvent. मतलब जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, मतलब जिसमें हम लोग कोई चीज़ डिजॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम मात्रा में अवेलेबल है उसको सॉल्यूट बोलते हैं. ठीक है, विच हैज़ टू बी डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्यूट, एंड जिसके अंदर वो डिजॉल्व होता है इट इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट. ठीक है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट. इसके लिए हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, अगर आपको याद है ना. मटेरियल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट एंड हैव पार्टिकल्स दैट आर विजिबल टू नेकेड आइज फॉर्म अ सस्पेंशन. मतलब सस्पेंशन क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं. ठीक है. सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस. वो कौन सा टाइप का है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है. ठीक है. कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई. कोलाइड्स का पार्टिकल साइज क्या होगा, इट विल बी बिटवीन 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻7 मीटर. ठीक है. द पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट. मतलब क्या होता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने पढ़ा था आगे, कि जैसा बीम
एक लाइट का बीम आता है कोई चीज़ पे टकराता है तो वो स्कैटर होता है लाइट, तो उससे क्या होता है कि जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है, ठीक है। कोलाइड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज and the medium in which they are distributed is called the dispersion medium. Pure substances can be elements or compounds. An element is a form of matter that cannot be broken down by chemical reactions into simpler substances. हमने देखा था, ठीक है, कि कोई भी एक चीज़ है उसको हम लोग वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर लाइक ऑक्सीजन एटम, यू कैन डिवाइड इट फर्दर, ओके, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. A compound is a substance composed of two or more different types of elements chemically combined in a fixed proportion. We took example of water. It is chemically combined in the fixed proportion. Okay, H2O है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम बना के वाटर बनता है, ठीक है. Properties of a compound are different from its constituent elements, whereas the mixture shows the properties of its constituent elements or compounds. Okay. With this we have completed chapter 2. Okay.